Namaste, everybody. Welcome back. Welcome back to this week's Happy Minds. This is Happy Minds number 1190. And love you all for making Happy Minds awesome week after week, month after month, and year after year. And it's so wonderful to know that people have joined from places, from far off places. जिस ढंग से आप HMs के की news दे रहे हो अपने friends को, relatives को. It's wonderful to know that people are looking forward to Happy Minds, and we get loads of messages and success stories. And last week was we were flooded with success stories, and I could not take all of them. So love you for making Happy Minds so very powerful, so very strong. So, and all of you joined me on YouTube. Namaste and welcome to this week's Happy Minds. This is Happy Minds number 1190. और जितने भी लोग जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं Happy Minds, आप सबका स्वागत है. Welcome to this family of seekers. This is the crazy family, a crazy family of seekers who come every Saturday morning. And हर शनिवार की सुबह हम लोग एक mission पे निकलते हैं. And the mission is, can we become better than what we were yesterday? Can we become better than what we were a week back, a month back, a year back? और ये quest, ये हमारा ढूंढना एक रास्ता, एक तरीका जीने का जो कल से बेहतर हो, is what we come here for every Happy Minds. So welcome, and I'm sure it's going to be a very insightful time for you, the next whatever time I'm there with you. आप अगर पहली बार attend कर रहे हो, so you can just type in your the city you're from, and you can just type in the first. So first, and you just say first HM, and आप लिख सकते हो कौन से शहर से आप हो. So we'll come to know आप कहाँ से आप लोगों ने join किया हुआ है. आज I was thinking of sharing with you a beautiful subject of growth, and inspired and triggered by this last week and the last 10-15 days जो गए हैं, because एक financial year खत्म हुआ है, एक नया financial year चालू हुआ है, and I've got a number of stories from people, from entrepreneurs, of how they have grown their businesses, of how they have improved upon their turnovers, their businesses compared to the previous year. So उस aspect से, from getting triggered from that, all those stories which I've heard. So I thought, let me share with you this very subject of growth. But before that, a few sharings which I have. And of course, my birthday tha last Sunday. And love you all for the wonderful messages which you sent. I have not been able to answer quite a few of them. In fact, many of them I've not been able to answer. जो भी मेरे phone में आए हुए, social media में आए, I've just said thank you. And जिन्होंने मेरे को personally message भेजा है, there have been hundreds. और पिछले कई सालों से मेरी एक आदत रही है कि मैं टाइम लेके हर पर्सनल मैसेज को पर्सनली रिप्लाई करता हूँ. And it has taken me sometimes weeks and sometimes months to reply back to them. But मेरी ऐसी ख्वाहिश रहती है कि मैं जिन्होंने मेरे बारे में सोचा और मुझे मैसेज भेजा, can I give them a personal reply? कब तक कर पाऊंगा मुझे मालूम नहीं. टीम में, घर में सब बोलते हैं क्या ये, you keep on replying. You can just have your status as thank you everybody. वो भी कर सकता हूँ, but फिर लगता है कि जितना कर सकता हूँ करूंगा. So if some of you have sent your messages to me और आपको reply नहीं मिला है, करूंगा reply, मरने से पहले कर दूंगा, for sure. And कुछ बहुत अच्छे messages भी आए, तो I just thought I'll share a few messages with all of you. And this one message is from Sangeeta Ranade, and she says, respected sir and ma'am, want to share with you that I have started an activity in my clinic. She's a doctor, and she started an activity called Swasthya Club, and it's an awareness program which can help to prevent mental and physical illness, which is a wonderful strength of her. She says of my science called Ayurveda. She's an Ayurvedic doctor, and she's doing great in our field. And she says food, exercise, diet pattern, even some remedies can never be generalized. It has to be looked and followed individually. So that's what I've been doing, and will be grateful to you always for adding a bunch of experience in my career. It's more fun in working now than what it was before. And so congratulations, Sangeeta, for adding on and starting this Swasthya Club. The more people join your club,
the more this awareness of health, mental and physical, will be there. I believe so. Because एक ग्रुप साइकोलॉजी भी काम करती है. एक इंडिविजुअल इंसान अपनी मेहनत कर रहा है, अपना काम कर रहा है, और एक इंसान ग्रुप में है जो एज अ ग्रुप सब लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं. तो जब आप उस ग्रुप में होते हैं जहाँ पर सब लोग अपने ऊपर पर मेहनत कर रहे हैं, यू आर काइंड ऑफ पुश्ड, और वो ग्रुप के का कॉमन फैक्टर आप पे इफेक्ट करता है व्हिच ड्राइव्स यू. सो इवन इफ व्हेन यू आर काइंड ऑफ, कभी-कभी हमारी खुद की एनर्जी कम हो जाती है. कभी-कभी हमें लगता है कि यार छोड़ो ना, अभी आज एक्सरसाइज नहीं करते हैं. बट इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, समवेयर योर एनर्जीज आर काइंड ऑफ हैंडल्ड बाय द ग्रुप. एक वीडियो मुझे ध्यान में आ रहा है, पता नहीं कहाँ से मेरे फ्रेंड सर्कल में वो आया वीडियो व्हाट्सएप में, जहाँ पर एक ग्रुप है हेल्थ का जो सुबह मॉर्निंग वॉक करते होंगे, या आपस में उनका एक दोस्ती का ग्रुप होगा, वेयर एवरी मॉर्निंग दे गो फॉर अ वॉक. तो उनका एक वॉकिंग पार्टनर नहीं आया, तो वो लोग सब बैंड बाजा लेके उसके घर पहुंच गए और उसके घर के बाहर ढोल वोल बजा रहे हैं. तो मजबूरी में उसको घर से बाहर निकलना पड़ा, और वो पूछ रहे हैं भाई आज क्यों नहीं आया तू वॉक पे. तो आई थिंक दिस इज सच अ वंडरफुल पार्ट ऑफ ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ ग्रेट ग्रुप. और अगर आप अलाइंड हो उस ग्रुप के साथ, और वो ग्रुप अलाइंड है किसी बड़े एक्टिविटी के साथ, सो यू अलाइंड विद द ग्रुप एंड द ग्रुप अलाइंड विद द बिगर विजन, तो इट कैन बी अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन. तो ये आपका जो स्वास्थ्य क्लब है, आई विश यू द वेरी बेस्ट फॉर दिस, एंड आई एम श्योर थ्रू दिस इनिशिएटिव a lot of people will take up the mental and the physical health well-being as an important part of their lives. Uh, Another is it's a beautiful, lovely birthday message from Kedar Kale, and he says, "Sir, actually, मेरे साथ ना बड़ी प्रॉब्लम है यार. मैं और खासकर जब when I meet Chrysalians, when I meet people who have been my students, तो मुझे रहा नहीं जाता उनको टोकने से, उनको पिन पॉइंट करने से, या उनको पिंच करने से. एंड और मुझे ना अक्सर पड़ी नहीं होती है कि ये लोग क्या सोचेंगे, इनको बुरा लगेगा तो क्या. समटाइम्स मेरे साथ जो होता है उसको लगता है कि आप कैसे बोल सकते हो ऐसा. मैं उसको अपना मानता हूँ इसलिए बोल सकता हूँ. एंड आई फील द पर्सन हैज अ पोटेंशियल टू डू थिंग्स. तो कभी मैं किसी को बोलता हूँ कि तेरा फैक्ट्री में मजा नहीं आया जाके, एंड कभी किसी ऑफिस में जाके मैं बोल देता हूँ. सो आई एम काइंड ऑफ ब्लंट विद पीपल whom I believe they are my own people, who also see me as their own. And sometimes people do feel bad, but that's the way I am. So I remember एक बार मैं वैशाली शर्मा के ऑफिस गया, एंड शी हैड जस्ट टेकन दैट ऑफिस. वो एक काफी समय से उस ऑफिस में थी, और उन्होंने ऑफिस को रेनोवेट किया, अपना अच्छा सा एक बढ़िया सा उन्होंने केबिन बनाया, बाहर बैठने का लाउंज एरिया बनाया. एंड आई हैपन टू बी एट हर ऑफिस. एंड सो उनका एक 3 स्टोरी का ऐसा बिल्डिंग था, उसमें उन्होंने पूरी बिल्डिंग लेके रखी थी रेंट पे. एंड जस्ट 2 मंथ्स बैक, मेरे विजिट से 2 महीने पहले, उन्होंने उस ऑफिस का एग्रीमेंट रिन्यू किया था. एंड सो उस एग्रीमेंट रिन्यू करने के बाद दे इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी ऑन द ऑफिस, एंड सो दे प्राउडली कॉल्ड मी कि आप आइए हमारे ऑफिस में. तो मैं गया, एंड आई वाज देयर. तो विजिट किया, बातचीत हुई, सब हुआ, डिस्कशंस हुए. आई अंडरस्टूड देयर बिजनेस मॉडल. एंड ऐसा करते करते हम लोग फिर जाने का समय आया, एंड आई दे केम टू सी मी ऑफ. और मैं गाड़ी में बैठने वाला ही था, तो वैशाली मैडम जो है वो मुझसे पूछती हैं, सर तो कैसा लगा आपको ऑफिस. अब मैं बोलने वाला नहीं था, लेकिन आप पूछ ही लिया, तो फिर मैंने कहा अभी सुन लो, तुमने पूछ लिया तो. आई सेड आई डिड नॉट लाइक योर ऑफिस. एंड उसका चेहरा उतर गया. बोथ प्रवीण एंड वैशाली, दोनों, बोथ हस्बैंड वाइफ, दे देयर, एंड समवेयर दे फेल्ट, हाँ ये क्या कह रहे हैं. हाँ, आई डिडंट लाइक द ऑफिस, इट्स अ 3 फ्लोर ऑफिस. ये क्या है, पागलपन है, आदमी ऊपर से नीचे जाएगा. और इज इट अ जिम which you have started, that people should lose weight going up and down? I don't see synergy, I don't see energy. एक नीचे बैठा हुआ है तो उसको नहीं मालूम ऊपर वाला क्या कर रहा है, जो ऊपर वाला है उसको नहीं मालूम नीचे क्या हो रहा है. Either the office team is so big that you have departments in every floor, and every floor does not need to go and meet everybody. आपकी टीम छोटी है, तो आप तो ऊपर से नीचे करते रहोगे, या टीम आपके ऊपर से नीचे करती रहेगी. एंड यू डोंट सी द बिगनेस
बिकॉज दे आर डिवाइडेड इन डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स. तो हर फ्लोर में एक दो कमरे हैं और आपने उसमें अपना ऑफिस खोल के रखा. तो मैं कहा आई डिडंट लाइक इट. एंड दोनों बेचारे चुप हो गए, कुछ बोल नहीं पाए. सो आई आई समटाइम्स आई किक माई सेल्फ. ऐसे मैं ये क्यों करता हूँ ऐसी हरकतें. बट नेवरदलेस एंड इट सो हैपेंड दैट मेरी बात उनको लगी और उन्होंने कॉल लिया to shift from that office after investing lakhs of rupees on the renovation of that office. And they took up a beautiful office in a mall. और वहां उन्होंने अच्छा इन्वेस्टमेंट करके बड़ा ऑफिस, अच्छा ऑफिस लिया. And then I was there to inaugurate that office. And just a few days back, उन्होंने बताया मुझे कि how the team has grown, how the turnovers have grown, how there is a lot of energy. And the best part, she says, is we have retained every team member for the last 1.5 years, जबकि उससे पहले हमारे यहाँ टीम मेंबर्स टिकते नहीं थे. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑफिस अच्छा हो गया है इसकी वजह से टीम मेंबर टिक गए. इनका टीम को समझना संभालना भी अच्छा हो गया है. बट इंफ्रास्ट्रक्चर डज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इट डज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट. सो कमिंग, मैं जरा भटक गया था. मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था. तो केदार काले जो है, तो भी बीच में वैशाली शर्मा का केस आ गया. तो केदार काले जो है ये मुझे मिले कुछ समय पहले. एंड ही राइट्स, सर लास्ट मंथ इन मुकेश सर's डॉटर्स मैरिज. तो एक हमारे क्रिसलिन है मुकेश, एंड उनके लड़की की शादी थी. तो आई वाज देयर एंड देयर आई मेट केदार काले. एंड केदार काले के साथ केदार की लड़की भी थी. एंड आई उसकी लड़की ने मुझे एक मैसेज किया था कि सर आई हैव टेकन पार्ट इन अ मैराथन एंड आई हैव और ये मेरी शुरुआत आपके साथ हुई थी 10 साल पहले एंड थिंग्स लाइक दैट. तो मैंने कहा केदार, योर डॉटर शी इज टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ एंड लुक एट यू, वेयर आर यू गोइंग. मैं कहा नहीं मिलूंगा तेरे से मैं अगली बार, अगर ये इस तरह से अगर तू जम्बो जेट बन के मेरे सामने आएगा. आई वांट टू मीट अ ह्यूमन बीइंग, नॉट टू इन वन, कि एक जिस्म में दो बॉडी घुसा के रखा हुआ है. तो ऐसा मैंने उसको पंच किया. एंड ही सेज, he says, sir, last month in Mukesh's daughter's marriage, you asked me to for 5 kg weight loss. एंड मेरा बर्थडे था. तो मैंने कहा मेरे बर्थडे में मुझे 5 kg वेट लॉस गिफ्ट चाहिए. एंड he writes to me, he says, I said yes, my weight is 101 kg in 4th Feb. From that day, I focus on diet and extra exercise. Yesterday, my weight was 94.2 kgs and today it is 94. As per your demand, 5 kg weight loss, but I lost 7 kgs for you, sir. थोड़ा एक्स्ट्रा तो बनता है आपके लिए, आपके बर्थडे के लिए. तो so thank you, love you Kedar for this wonderful birthday gift to me. And you took care and I believe and I want to believe that आप इसको मेंटेन करोगे. तो 101 से आप 94 पे आए. एंड वो होता ना कि 200 ग्राम कम नहीं होता, इसलिए ही वेटेड फॉर 200 grams to be reduced to send me for 94 kg. So nice of you. Keep on working on your health and keep on giving me such birthday gifts. हाँ जी. तो I have one more story to share, but before that, आप लोग बताओ how are you feeling this very morning? So type in and let me know how are you all feeling this very morning. YouTube में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप भी टाइप इन कर सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है अर्ली मॉर्निंग. बिकॉज अर्ली मॉर्निंग देयर इज नो अदर वे बट टू फील awesome, but to feel jhakas, but to feel takatak, but to feel wonderful, but to feel on top of the moon, fantabulous. और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास. तो फटाफट टाइप करो एंड लिखो कि आपको कैसा लग रहा है दिस वेरी मॉर्निंग, एंड देन आई विल टेक यू अहेड. हाँ जी. गुड. फैंटास्टिक. टाइप करते रहो. मैं आपको आई टेक यू टू अनदर स्टोरी. This another story is from Chetan Kunjir, and he sent me and he said, "Sir, आपके 54th birthday में 54 kilometers of cycling is what I have done, and here's my gift to you." और सुबह सुबह साइकिलिंग करके जो है उसने उसका जो भी उसका डिस्टेंस कवर करके उसने उसका मैप का फोटो मुझे भेजा. And he says, "Sir, मेरी तरफ से आपको ये birthday gift." I said, "Wow, this is fantastic." So love you all for celebrating my birthday in so many amazing ways. There are many other things. किसी ने सूर्य नमस्कार किया है, किसी ने 108 सूर्य नमस्कार किया कि सर आपका 54x2 108 सूर्य नमस्कार. किसी ने वॉक किया है, किसी ने पुशअप्स किए हैं, कुछ 15-20, किसी ने
स्टार्ट किया है डाइट प्लान, किसी ने बुक पढ़ना शुरू किया है. सो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें करी हैं ऑन माय बर्थडे. एंड इट स्पीक्स अ लॉट. इट shares your love. It speaks about your love. It speaks about what you have me in your mind as. So I have no words to describe that feeling. So thank you and love you so much for that. So thank you so much. आज का सब्जेक्ट में जैसे बोला कि last few weeks I've been getting a lot of growth messages, and that has triggered me to talk about growth because growth जो है ना, it is infectious. Growth is so wonderful. It is exciting. It is attractive. It is very sticky. वो रह जाती है, वो आपको पुश करती है, वो आपको इंस्पायर करती है. And if you're there amongst people who have some growth stories, आप re-energize हो जाते हो. You are kind of pushed, compelled to do a lot more. That is why I'm in love with growth and I'm in love with growth stories. And of course, growth has to be in the right direction. Growing in the wrong direction, matlab, I'm not talking about growth here, but I'm talking about growth in business, in life, in profession. तो growth जो है ना, ये होते रहनी चाहिए. अगर किसी चीज से मोहब्बत करनी है, which you feel can't be questioned, that mohabbat, that love should be for growth. Because if you were to think about it, growth is being godly. Growth is all about aligning with the basic concept of nature. जो हम बात करते हैं ब्रह्मांड की, हम बात करते हैं यूनिवर्स की, हम बात करते हैं, it is ever expanding. Am I right or not? So it is ever growing. The very concept of nature, the very characteristic of nature is to expand, to grow. तो अगर हम एक्सपैंड कर रहे हैं, नॉट फिजिकली, हम एक्सपैंड कर रहे हैं बिजनेस वाइज, हम एक्सपैंड कर रहे हैं नॉलेज वाइज, हम ग्रो कर रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं एटीट्यूड वाइज, स्किल सेट वाइज, हम अपने कम्युनिकेशन को अच्छा कर रहे हैं, हम अपने रिश्ते बनाने की काबिलियत को अच्छा कर रहे हैं, हम अपने ओवरऑल बिजनेस करने के तरीकों को अच्छा कर रहे हैं. इफ यू आर एक्सपैंडिंग, इफ यू आर ग्रोइंग देयर, and if we are growing our turnovers, we are growing our team size, we are growing our capability to handle challenges. इसको अगर हम लगातार ग्रोथ करते रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है? वी आर काइंड ऑफ बीइंग गॉडली. तो हम भगवान के जैसा हम बिहेव कर रहे हैं. एंड दैट्स व्हाट गॉड वुड वांट. गॉड वुड वांट अस टू बी अ मिरर image of him. God would want us to conduct our lives the way the universe is conducting. And that is why I have a very strong liking, affinity for growth. तो जहां कहीं भी ग्रोथ स्टोरी होती है, जहां पर भी कोई इंसान ग्रो कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही होती है, एंड इफ दे वांट मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट, मैं पुश करता हूं अपने आप को कि मैं उसका हिस्सा बनूं. सो वेदर इट बी न्यू ऑफिस की ओपनिंग होती है, वेदर इट बी कोई फैक्ट्री की ओपनिंग होती है, वेदर इट बी अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो आइदर आई एम देयर इन स्पिरिट इन टर्म्स ऑफ माय मैसेज, माय लव, आइदर आई पुश माई सेल्फ टू बी देयर इन प्रेजेंट. कहीं किसी का even personal life में, if people are buying a new house, people buying a new car, my blessings are always there, that God, let them keep on growing, let them keep on progressing, let them keep on becoming more of what they want to be. And that's because it's so inspiring. Somewhere so I was there with this company called Manglam, and they had called me to address their entire channel partners team. And वो हॉल में बैठे थे 250-300 लोग. तो उसके सामने मंगलम was sharing about Subhash, the founder of Mangalam. He was sharing about his growth journey, कि कैसे 2017 से उनकी जर्नी चालू हुई. And I was so happy to see the graph going up ऐसे करके. So from what they were, though वो उसकी बड़प्पन है कि he contributes the growth to me. He says जब से वो एमजी सर मिले मुझे, तब से मेरा ग्रोथ चार्ट चालू हुआ, कि पहले हम 22 लोगों की टीम थे, तो 22 से आज हम 150 लोगों की टीम हो गई. कहाँ हमारा टर्नओवर 20-25 करोड़ का था. From there we have moved on to 475 crores. So yes, before they were talking about 475 crores. तो ये ग्रोथ पैटर्न जो है, एंड दिस इज सो वेरी इंस्पायरिंग. तो मेरे आपसे क्यों ये बात कर रहा हूँ? नंबर वन, आई शेयर विद यू what you can do to grow, but more than anything else, I'm just sharing this with you.
Please have the growth mindset. Please develop that mindset that I should grow and grow in all aspects. And second is, for you to grow, first you got to appreciate the growth around you. ये मैंने बहुत एक चीज देखी है, मैंने आप लोग भी ऑब्जर्व किया होगा कि people who don't have a growth mindset, they can't digest the growth of other people around. People who don't have a growth mindset, they are jealous of somebody else's growth. आपने कभी ये देखा है, कभी आपने इसका रियलाइजेशन किया कि समवेयर किसी ने अगर घर खरीद लिया, किसी का बिजनेस एक्सपैंड हो गया, तो देयर आर सम पीपल जिनको वो बर्दाश्त नहीं होता है, बिकॉज समवेयर दे डोंट हैव दिस ग्रोथ माइंडसेट. तो बिफोर यू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, और आई वांट यू टू जस्ट आस्क योरसेल्फ दिस वेरी क्वेश्चन कि आप कैसे हो बाय नेचर. आर यू एबल टू डाइजेस्ट हाउ पीपल आर प्रोग्रेसिंग अराउंड यू, और आर यू क्वेश्चनिंग, अरे ये हमने नया घर ले लिया है, नहीं वो एक ऐड आया था ना, नई गाड़ी, नया नया घर, यू नो, नई नई बीवी, तो वो दैट एड व्हिच यूज्ड टू कम लॉन्ग बिफोर. तो कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो सकता, कि नहीं होता है. बिकॉज जेलेसी कब होती है, जब आप किसी की ग्रोथ को, किसी की तरक्की को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आप जलते हो. मेरी बात को ध्यान से सुनो. जब आप किसी की तरक्की, किसी की ग्रोथ, किसी की नई गाड़ी, किसी का बिजनेस ग्रोथ, किसी का नया घर, किसी का बच्चे का अच्छे कॉलेज में एडमिशन, किसी के यहाँ अच्छी नौकरी लगना, जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो समवेयर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ दैट फैक्ट मेक्स यू जेलस. और इसका उल्टा भी देखो कितना बढ़िया है. जब आप किसी की ग्रोथ को एक्सेप्ट करते हो, जब आप किसी की गाड़ी को एक्सेप्ट करते हो, किसी के नए घर को एक्सेप्ट करते हो, जब किसी की बच्चे की अच्छे कॉलेज में जाना एक्सेप्ट करते हो, जब आप किसी की अच्छी प्रमोशन को एक्सेप्ट करते हो, तो आप इंस्पायर हो जाते हो, अरे यार मुझे भी करना है. जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप एक नेगेटिव स्टेट में जाते हो जिसको बोलते हैं जेलेसी. आप कुड़ते रहते हो, अंदर से कुन 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 चालू रहता है. लेकिन जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, यू हैव दिस स्टेट, वाह ना यार, ये देखो कितना अच्छा घर बनाया है, देखो ना, वाह कितना अच्छा ऑफिस बनाया है, अरे आई शुड आल्सो मेक माय ऑफिस, अरे आई शुड आल्सो ग्रो, आई शुड आल्सो मेक दैट मनी. You get inspired. Inspiration comes from acceptance of things around you. Jealousy comes from non-acceptance of things around you which are growing. तो बेसिक नेचर अपना चेक करो कि आपका बेसिक नेचर क्या है. मेरे साथ हो कि नहीं हो? हाँ जी. This is Happy Minds number 1190. We are inching closer to Baras. It's all growth oriented, all seekers of happy minds. हाँ जी. You are connected with what I'm saying. कुछ connect हो रहा है? So, तो मेरा आपसे कहना है कि you got to keep on asking yourself, am I growth oriented mindset person? क्या मुझे ग्रोथ से मोहब्बत है? और अगर किसी चीज से मोहब्बत करनी है, सबसे पहले तो ग्रोथ से मोहब्बत करो. And you will start seeing the elements of growth. You will start seeing growth seeping in your life because आप मोहब्बत कर रहे हो ना उससे. जिस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्यों आएगी? जब आप किसी और का लाइफ में अच्छा होना को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी लाइफ में अच्छाई क्यों आएगी? That's a simple law of life. Simple law of life. So how do you bring in growth? How do you bring in that mindset? There are so many ways. But I feel that एक सबसे सिंपल सा एक तरीका हो सकता है कि are you a learner? Are you willing to take absorb something from everything around you? हर चीज में से कुछ ना कुछ अगर उठा सकते हो आप, you will see that you will realize that you're on the growth path. मैं जब परसों I was there at this company called Manglam, उनका एक पर्पस था. उस पर्पस को वो शेयर करना चाहते थे मेरे द्वारा कि I should share with their channel partners. And the purpose was that Manglam wants to transform the real estate industry. But it was such a wonderful concept which people were not able to understand. तो मैं उनको एक सरलता से बता रहा था कि ये कॉन्सेप्ट है क्या और
आपका इससे क्या लेना देना है? एंड द कॉन्सेप्ट वाज दैट इफ योर एग्जिस्टेंस, and this is one of the most beautiful ways by which you can grow, one of the most beautiful ways. अगर आपका अस्तित्व, आपका एग्जिस्टेंस is purely for yourself, then you will not grow. I'll repeat again. अगर आपका existence is purely for yourself, then you will not grow. You will make a very small life. आपका होना, आपका बिजनेस करना, आपका जॉब करना, आपका एक समाज में रहना, आपका इस शहर में रहना, या फिर जो आपका जो होना है, पूरा अस्तित्व जो आपका है, if it is just for yourself, then you will not be add on. You can't add on to this world. Then you are not a growth oriented person. लेकिन जब आपका होना, आपका अस्तित्व जो है, it is for a bigger cause, or it is helping a bigger cause, it is aiding a bigger cause, then you will see that somewhere you will be on a growth path for yourself. And what I'm speaking about is so very evident and common in the nature around us. क्योंकि कोई भी चीज पृथ्वी में अगर आप देखो, nothing is existing for itself. Nothing. Everything is existing for something else. Everything is supporting life in some other life. एक मैं देख रहा था, there was this small video which I was seeing, and the video was uh, of the entire, एक नेचुरल, ये नेशनल ज्योग्राफिक में वीडियोस काफी बनते हैं ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. उसमें एक छोटा सा बढ़िया सा वीडियो था जहां पर एक अफ्रीका में एक फ्लावर है. It's called a dragon flower because of the kind of bigness it has of its leaf and the flower. और उसका जो फूल है वो इतना बड़ा होता है कि वो सुबह खिलता है. And that flower, when it kind of blossoms in the morning, जैसे वो सूर्य की जैसे किरण पड़ती है वो खिलता है, बड़ा सा होता है. एंड इट्स अ ह्यूज ड्रैगन फ्लावर. तो उसके फ्लावर के टॉप में जो पेटल है उसमें शुगर का एक कोट आता है. तो वो वीडियो में इतना सुंदर तरीके से बताया गया कि उसमें इतना ऐसा शुगर का कोट आता है, और वो शुगर के कोट को चाटने के लिए, उसको खाने के लिए एक चूहा की तरह एक जानवर है, वो आता है उधर. छोटा सा जानवर वो आता है और वो उसी एरिया में पाया जाता है. और वो आता है जानवर और उस बड़े से फ्लावर के ऊपर आता है, एंड वो सारी शुगर को लिक करता है. और वो शुगर को लिक करता है, इतना उसको स्वाद आता है कि वो शुगर को लिक करने के बाद वो वहां बैठ के वो पॉटी करता है, और वो पॉटी करके निकल जाता है वहां से. एंड दैट पॉटी इज व्हाट दैट फ्लावर नीड्स फॉर इट्स एग्जिस्टेंस. तो जैसे ही वो पॉटी करता है वो फ्लावर ऐसा क्लोज हो जाता है, एंड इट डाइजेस्ट दैट पॉटी एंड इट गेट्स द न्यूट्रिएंट्स. तो लुक एट द ब्यूटी ऑफ नेचर. कि मैं जब देखा तो मैंने कहा वाह, कितनी बढ़िया चीज है ना, कि उसने दिया कि मेरे पास कुछ है, ये तेरे लिए है, मेरे लिए नहीं है. जो मेरे पास है वो मेरे लिए नहीं है. ये शुगर जो मेरे पास आ रही है मेरे लिए नहीं है, वो तेरे लिए है. तो वो आया उठ के, उसने कहा अच्छा मेरे लिए है, चलो मैं ये खा लेता हूँ. उसने वो खा ली शुगर, उसने शुगर खा ली. तो उसके बाद वो कहता है चल मेरे पास भी कुछ है जो मेरे लिए नहीं है, तेरे लिए है. और वो पॉटी करता है, और वो फ्लावर कहता है अरे वाह, ये तो मेरी जिंदगी है. और वो उसको लेता है और न्यूट्रिएंट्स वो अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता. इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग. एंड दैट इज व्हाई इफ नेचर वाज टू बी लेफ्ट ऑन इट्स ओन, नेचर वुड ग्रो. ये तो हम इंसानों ने उसमें कुछ गड़बड़ कर. तो आपको पूछना है अपने आप से. आई एम जस्ट मेकिंग अ today it's kind of on a philosophical side. आज का HM is on a philosophical side, but I want you to connect with this very thought. Is your existence all about yourself? आपकी जिंदगी, आपका घर, आपका फैमिली, आपके सपने, आपका सब आपके बारे में? Or is your existence about somebody else, something bigger? Is it like that? कि आपका होना से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है सिवाय आपके. So that plant can do it, a small plant, and it says यार what I have is for you. जो मेरा है वो मेरे लिए नहीं है. तो पेड़ भी बोलता है यार मैं हूं इधर, तो ये पेड़ जो मैं छांव दे रहा हूं, ये छांव मेरे लिए नहीं है. ये तो कोई थका हुआ आएगा, बैठेगा मेरे छांव के नीचे,
थोड़ी राहत मिलेगी। तो मैं जितनी ये डालियां बड़ी कर रहा हूँ, मैं जितने ये टहनियां बड़ी कर रहा हूँ, जितना मैं इसको ये हवा का झोंका सहन कर रहा हूँ, जितना मैं तूफानों को हैंडल कर रहा हूँ, मैं अपनी ये टहनियों को, पत्तों को बचा के रख रहा हूँ। ये सब लड़ना झगड़ना, जितनी भी मेरी मुसीबतें हैं, उससे मैं पानी सींच रहा हूँ, मैं अपने आप को इस गर्मी में तप रहा हूँ। ये सब मेरा तपना, अपने आप को बचाना इज नॉट फॉर मी। ये किसी थके हुए इंसान के लिए, जो जिसको आराम करने की इच्छा होगी, उसके लिए मैं बचा के रख रहा हूँ कि वो आके और नीचे मेरे बैठेगा और थोड़ा 1 घंटा आराम कर लेगा। ये सारी टहनियाँ मेरे लिए नहीं है, ये उन सब हज़ारों पक्षियों के लिए है जो आएँगी और अब मेरे टहनियों में अपना घोंसला बनाएँगी। उनके लिए मैं अपने आप को बचा के रख। Look at the way nature is. It's somewhere in its own way saying to us time and again, if you really want to grow, make your living beyond yourself. Go beyond yourself. अपने से ऊपर उठो। और आप देखो, जब आप सुबह उठोगे और आप कुछ और जीवों के काम, कुछ और लोगों के काम आओगे, तो फिर ग्रोथ क्यों नहीं आएगी? फिर आप क्यों नहीं सीखने को बैठोगे? फिर आप क्यों नहीं और कुछ बड़ा समझने को बैठोगे? लेकिन जब आपकी ज़िंदगी आपके लिए है, तो फिर आप छोटी ज़िंदगी बन के, सो व्हेन यू आर रैप्ड इन योरसेल्फ, यू मेक अ वेरी स्मॉल पैकेज। सुना है ना? जब आप खुद में लिपटे होते हो, तो फिर छोटा ही पैकेज होगा ना, बड़ा कहाँ से होगा? सो व्हेन आई लुक एट आवर विज़न, हमारी कंपनी का जो विज़न है, and this year we are going great, guy. We are looking forward to a great year. We are on a hiring spree. हम लोगों को हायर कर रहे हैं, हम टीम को बिल्ड कर रहे हैं, इस बार और बड़ी टीम बना रहे हैं। हम अपना आगे का जो इनिशिएटिव्स हैं इस साल के, हमने वो लाइन अप किए हुए हैं। सो वी आर काइंड ऑफ गंग हो पॉजिटिव अबाउट द ईयर टू कम, बिकॉज हमारा विजन अभी हमें, हम इस कगार पे आ गए हैं जहां हमारा विजन हमें ड्राइव कर रहा है बार बार। एंड द विजन इज, वी वांट टू कंट्रीब्यूट 2% टू द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री। यार, जो भी हम काम कर रहे हैं, इस काम से जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं यार, उनका बिजनेस इतना बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि हम सब मिल के अगले सालों, कुछ सालों में हम सब मिल के अपने देश के जीडीपी में 2% डेंट तो मारे यार। अगर हम 2% डेंट नहीं मार पाए अपने देश की जीडीपी में, अपना कंट्रीब्यूशन दे नहीं पाए, तो फिर यार ये सब मेंटरिंग, ये कोचिंग, ये करना, बातें करना बकवास है। तो मेरा मेंटरिंग, मेरा कोचिंग, मेरा टाइम मेरे लिए नहीं है। दिस मेंटरिंग ऑफ माइन इज फॉर अ बिगर कॉज, and the cause is that our nation should become much more economically strong. Our nation should become more wealthier. I'm not saying I'm the one who's going to make it wealthier, but उस बड़े से घड़े में, जिसमें हम सबका पैसा इकट्ठा होना चाहिए, तो मेरा भी कंट्रीब्यूशन होगा कि यार 1-2 टका तो हमने भी जोड़ा है देश की ग्रोथ। And that is why I speak about ethical businesses. That's why I speak about people growing businesses. I speak about people paying taxes. हार्नेक्स एक कंपनी, जो ट्राइब में हमारे एक अभी मीटिंग हुई, पिछले हफ्ते हमारी मीटिंग हुई, and all the entrepreneurs were there. And Harnex, we celebrated the growth of Harnex as a 3-digit company. And 3 more companies in the group said we will cross 100 crores this year. And वो 100 crores का celebration तो था ही, लेकिन एक बहुत अच्छी बात रोहन ने कही। रोहन is the founder, is the director in Harnex, founder son. And रोहन कहता है कि सर, हमने सिंपल कर दिया है इस बार बिजनेस करने को। We have got a zero cash, zero adjustment affair in the company. So everything is built, everything is documented. There is no single penny which comes in cash. So it's zero cash, zero adjustment. क्योंकि जितना कैश आता है उतना एडजस्ट करना पड़ता है। तो हमने कहा एडजस्ट का चक्कर ही नहीं करेंगे। Imagine business is happening like this, where all the business is happening, is all the work is happening in zero adjustment mode. तो कितना contribute करने के लिए हम लोग ready हो जाएंगे। So my living is not for myself. That's the way I've thought about it. And that's why these happy minds are there. It's not for myself. I want to create a bigger fraternity of people. I want to create an ecosystem around where we have growth oriented people who kind of live their lives in such a way where they can become somewhere the pillars, the support. They can become the instigators. They can become the catalyst for somebody else to grow. Hmm.
and I'm blessed. Trust me, I'm really, really very blessed. I'm blessed that I have so many organizations now. और मैं जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे साथ ये organizations का number बढ़ते जा रहा है. The number of organizations which are living a wonderful life, the way they are doing businesses, they are contributing, they are growing. इतने स्टोरीज आई हैं मुझे, किसी का 50 करोड़ हो गया है, किसी का 60 करोड़ हो गया है, कोई डबल कर गया टर्नओवर, कोई इस साल दे सेड वी हैव ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स. And I'm just seeing the efforts of last so many years now kind of fructifying. They now coming into reality कि अभी हमारा real contribution to this nation is going to happen. And that is why I am looking forward to this year with double the energy, double the strength. And I wish you all also that you make this year the best year ever in the history of your life. Let 24-25 financial year, if you're an entrepreneur, let this year be the year of your life. If you're a team member and a professional, then ensure your organization makes this year as the most powerful year in the history of their lives. And together, we will kind of change the entire way the world looks at us. So I was talking to Kesri Travels and I said, ये इतना हम लोग ट्रैवल, हम लोगों को बाहर ले जा रहे हैं, हम इतने लोगों को ट्रैवल करवा रहे हैं. Can they not be image consultants for us? Can they not be brand ambassadors for us? Where people going outside India, can they not create an image of India in a very powerful and a positive way? तो आप उनको यहाँ से भेजने से पहले उनको सिखाओ कि आपने बाहर ऐसा बिहेव करना है, ये कंट्री का कल्चर ऐसा है, वहां ऐसा आपने बर्ताव करना है, वहां ऐसे आपने बात करनी है. तो शायद समवेयर ये लाखों लोग जो बाहर जा रहे हैं, ये बाहर जाके हिंदुस्तान की एक अच्छी छवि छोड़ के आएंगे. सो आप बिजनेस तो कर रहे हो, लेकिन बिजनेस के साथ साथ एक बड़ी चीज भी कर रहे हो, अपने देश का नाम आप अच्छा कर रहे हो. एंड इफ जापानीज पीपल कैन डू इट, कि वो जाते हैं कहीं जाके मैच देख के आते हैं, चाहे वो ओमान में हो, चाहे यूरोप में हो, कहीं भी जाके वो मैच देख के आते हैं, तो जापानीज पीपल दे वी नो, वी हर्ड द स्टोरीज कि वो अपना स्टेडियम जहां पर वो बैठे हैं वो क्लीन करते. नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, एन नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव सीन, वी हैव हर्ड अबाउट इट, एंड द वर्ल्ड टॉक्स अबाउट इट. तो फिर हिंदुस्तान के जो टूरिस्ट है, जो इस समय इतना पैसा हिंदुस्तान में लोग कमा रहे हैं और बाहर घूमने जा रहे हैं, तो why should they not create, why should they not create an image of India? What if a company takes ownership of this and वो कहती है हम ट्रैवल तो कराएंगे, हम आपको घुमाएंगे, तो हमारा बिजनेस है ये, लेकिन हम एक बड़े कॉज के लिए भी खड़े हैं कि हमारे घूमने के साथ साथ हम अपने देश का नाम भी अच्छा कराएंगे. That's a cause. So क्वेश्चन, तो उस कॉज के लिए फिर आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, उस कॉज के लिए फिर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उस कॉज के लिए लोगों को सिखाना पड़ेगा, उस कॉज के लिए आपको लोगों को कुछ काम करने से रोकना पड़ेगा, उस कॉज के लिए शायद कुछ लोग आपको मना करना पड़ेगा, नहीं नहीं ऐसे लोग हम लेके नहीं जाएंगे, जिनको हमारे देश की इमेज की चिंता नहीं, हम उनको लेके नहीं जाएंगे. तो सिर्फ बोलने से कॉज नहीं होगा, उसके पीछे एक जान डालनी पड़ेगी. सिर्फ बोलने से क्या होगा कि 2% जीडीपी ग्रोथ करनी है, उसके पीछे जान भी डालनी पड़ेगी, उसके पीछे लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, सालों साल तक हैप्पी माइंड्स देना पड़ेगा, सालों साल तक आप लोगों के सपोर्ट में खड़े रहोगे, उनके दुख में, उनके सुख में, उनके आगे ग्रोथ में आप पार्टनर बन खड़े रहोगे, तभी तो वो 2% का सपना पूरा होगा. सो लेट अस बी ग्रोथ क्रिएटर्स, लेट अस सपोर्ट ग्रोथ, let us be happy for other people's growth, and let us pick up a cause which is bigger than us, and you will see you will be part of nature. And if you're a part of nature, तो nature तो कहती है यार ग्रो करना है, तो फिर आप पीछे कैसे रह जाओगे, आप भी ग्रो करोगे. I don't know if you have noticed this or not. Let me share this and break. I don't know if it was still a surprise for you. ये आज का रिकॉर्डिंग आज का एचएम एक रिकॉर्डिंग है. This is not a live session, this is a recording. मैंने आज ये रिकॉर्ड कल किया, मतलब I'm recording this on Friday and you're seeing it on Saturday, because Saturday morning I'm leaving, early morning I have to leave, and I'm going on a small mini vacation with my parents, माँ बाबू जी के साथ, मैं और रचना, हम चारों लोग जा रहे हैं, and I'm driving from here up north to Uttarakhand to my farm. And मुझे था कि मैं सुबह ये एचएम नहीं ले पाऊंगा, तो अभी मैं अपना एंटरप्रेन्योर ग्रोथ समिट लेके आया, वहां से मैं आया फटाफट वो समिट खत्म किया, फिर आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. और ये रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने उस 2% विजन के प्रति मेरी नियत पक्की है, मैं कमिटेड हूं, मैं उसके प्रति मैं मैं सरेंडर्ड हूं, मैं बाध्य हूं.
because I believe in it. They are not just words. तो टाइम इतना ऐसा स्ट्रेच हो कि मैं बस 10 काम मेरे पड़े हुए हैं अभी, लेकिन उसके बीच में भी मैं ये एचएम रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैं अपने उस मिशन के लिए बाध्य हूं। और मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि ये अगर आप बाध्य नहीं होगे, अगर आप कमिटेड नहीं होगे, तो कोई बड़ी चीज होगी भी नहीं है। सो इसको, आज के सेशन को ऐसा मेरा डाउनपोर समझिएगा, और इसमें से अगर आप कुछ पिकअप कर पाए, कुछ ले पाए, तो जरूर अपनी जिंदगी को ग्रोथ के पाथ पे लाइएगा। लेट्स एक्सेप्ट पीपल्स ग्रोथ, लेट्स एक्सेप्ट their journey towards a better life and be happy for them, and also get inspired by that, so that we can also create a wonderful life for ourselves. आज एचएम में इतना ही। और you can still send in a message, write in, type in a chat box, कैसा लगा आपको एचएम। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। I will go through your comments as to how you felt about today's HM, and do share about HM with your friends, with your families, with your loved ones. Let more and more people come in. Let more and more people get growth infected. We should create a growth infected fraternity where people are kind of hungry for growth, and they are growing for a bigger cause. They are hungry for kind of helping a bigger cause, standing up for a bigger cause. और जब हम बड़े के लिए खड़े होते हैं तो उसमें छोटा तो अपना आप अच्छा हो ही जाता है यार। सो that's what it is for today. और हम हैप्पी माइंड्स का, हम सॉरी, माय लाइफ जो हमारा है वो लॉन्च हो गया है। इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय लाइफ व्हिच इज गोइंग टू बी इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो आप अपना नाम दे सकते हो। माय टीम विल कॉल ऑन यू। वी हैव अ लिमिटेड सीट, हम सिर्फ 28-30 लोगों को लेके जाएंगे, and I think we have an upper strength of 30 people. So if you want to be a part of it, my team will connect with you, and you can be a part of this wonderful journey called my life. And it's a beautiful, time which we all invest together in Uttarakhand. And one of the most awesome offerings which I have to give to you is my life. So ये 20 से 25 अगस्त होगा। ये 5 दिन आपकी लाइफ के और मेरी लाइफ के सबसे मेमोरेबल दिन होंगे, ये बात तो पक्की है। And this you can, those who have been with me for years in my life, because ये हमारा सीजन 15 है, इसका मतलब 14 माई लाइफ सीजन हो चुके हैं। तो साल में एक ही करता हूँ ये, और करता हूँ इसलिए बिकॉज दिल के बहुत नजदीक है। तो अगर आपको लगता है कि यू शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्ट आना चाहिए, थोड़ा सा नेचर के करीब आना चाहिए, थोड़ा सा बड़े रूप में इस पूरे यूनिवर्स को समझने की अगर इच्छा है, तो मेरे साथ आइए, and we'll travel together on this beautiful journey of my life. And I can assure you that we'll come back much more lighter and happier and mentally wealthier. That's for sure. So make a great life for yourself, and I'll see you next HM. वो मैं लाइव लूंगा, वो रिकॉर्डेड नहीं होगा, ये बात पक्की है। ठीक है, आई विल टेक द नेक्स्ट HM फ्रॉम उत्तराखंड, समवेयर फ्रॉम देयर। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, and make a great life, make a great week, and ensure you're happy seeing somebody else's growth, and you're inspired seeing somebody else's growth. Love you all. Make a great life. Namaste, everybody. Namaste.